Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I'm Anjali Malviya. So in today's lecture we are going to talk about the excretion in humans. Okay, so this is our last topic of the chapter life process. We have discussed everything. Now the last topic is left is the excretion. Okay, so today we are going to discuss about the humans and then we are going to discuss about the plants. Okay, so yes, as this chapter means life process, तो life process का मतलब क्या है? Without which a human body cannot survive. Okay, so yes, excretory system, excretion भी एक यही major रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. तो जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो जो मेन ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है किडनीज. Right? These are your kidneys. Bean shape. We have a pair of kidney. Right? So ये इस तरह से एक हमारी किडनी है. Now इस किडनी के अंदर क्या होता है? ये किडनी मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है. तो इसका फंक्शंस क्या क्या है? It helps in the purification of blood. Excretion क्या है? Excretion is urination you can say. ठीक. और उसमें क्या है? जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है सच एज यूरिया, अमोनिया, वो सारा एक्सक्रीट होता है. ओके, सो एक्सक्रीशन इज बेसिकली यूरिनिफिकेशन. ओके, यूरिनेशन. सो किडनी परफॉर्म्स दैट फंक्शन. तो ब्लड से हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ है वो किडनी क्या करता है? अपनी तरफ लेता है. ठीक, किडनी में, और उसी चीज़ को हमारी बॉडी से वो बाहर भेज देता है. ओके, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ योर किडनी. यस, तो क्या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एलिमिनेट होते हैं? दैट्स योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट और सम विटामिन्स और बाइल पिगमेंट्स. ठीक, we'll discuss all these things in detail in few seconds. These are your organs of excretion. Now children, not only kidney but other organ also perform the excretion such as carbon dioxide and water. Lungs क्या करता है? In the process of respiration we exhale the carbon dioxide. Carbon dioxide क्या है? Waste product है. Right? We inhale oxygen and we exhale the carbon dioxide. Then skin, yes, in form of sweat. Then liver, right? Waste products are your ammonia, which contains nitrogen, which is dangerous to our body. Then your kidney, that waste is your urine. Yes, so the functions of the kidneys. It maintains the overall fluid balance. Okay, so this is very important. It maintains overall fluid balance. Then regulating and filtering minerals from the blood. Yes, it regulates and filters. This is known as your osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब कि किडनी उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में, उसको फिल्टर करने के साथ साथ उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका जो अमाउंट है, उसको भी रेगुलेट करता है. ओके, तो यस, रेगुलेट्स एंड फिल्टरिंग मिनरल्स फ्रॉम द ब्लड. देन फिल्टरिंग वेस्ट मटीरियल फ्रॉम फूड, मेडिकेशंस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. हमारे फूड में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी ऐसा मटेरियल है जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो उसके लिए हार्मफुल है, तो वो किडनी क्या करता है? उसको भी
फिल्टर करके हमारी बॉडी से पास करता है. सम मेडिकेशंस, जो भी मेडिसिन्स हम लेते हैं वो, देन सम टॉक्सिक substances. What are toxic substances? Such as your drugs, alcohols and all. Okay, so these are the major functions that kidney performs. You can take a screenshot, it will be very helpful for you. Yes, now let's see the structure of the kidney. I understand कि this chapter थोड़ा difficult हो सकता है आपके लिए as in your NCERTs, but I'm going to make it very simple for you. Okay, I'm going to explain it in a very simple language, in a very simple manner, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से. ठीक है, तो structure of your kidney. तो this cortex, wait, just zooming it more. Yes, this cortex, जो आउटर पार्ट है किडनी का, दिस पार्ट, दिस बेसिकली दिस पार्ट, दिस इज योर कॉर्टेक्स, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट. ठीक, आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज योर कॉर्टेक्स, दिस इज आउटर मोस्ट. ठीक, एंड these structures, these beautiful structures like a fan like structures, these are your medulla, that's the inner part. Okay, medulla is your inner. Okay, so these. Now how to remember? You can see these parts, these are somewhat forming a shape of M, you can say like this, they are forming a shape of M like this, right? So yes, थोड़ा सा easy हो जाएगा आपको समझने में when it comes in the labeling, in exams when it comes in the labeling the question, label the following, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा. इस तरह से जो एम शेप स्ट्रक्चर होगा, यस, इस तरह से जो एम शेप स्ट्रक्चर होगा, these are your medullas. Okay, yes, renal arteries, रेनल वेन्स, इनका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से. यूरेटर एक ट्यूब लाइक है इस तरह से, ये क्या करता है कि जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेती है, उसका फंक्शन मेन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन. ठीक, जब यूरिन फॉर्म हो जाता है तो इसी यूरेटर के थ्रू आपका नीचे जाता है और ये नीचे वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. ठीक, तो अभी ये समझ लो, ये यूरेटर का काम यही है, पासिंग, ये ट्यूब की तरह है जो काम करता है एक पैसेज का. ओके, दिस इज योर रीनल पेल्विस. नाउ रीनल पेल्विस का काम क्या है, दिस इज समवॉट हियर, दिस साइड, दिस पर्टिकुलर साइड. यूरिन जब आपकी फॉर्म हो जाती है, ओके, यू विल सी द ऑर्गन्स एंड व्हाट आर द अदर सिस्टम्स विच आर इन्वॉल्व, बट फॉर नाउ जब आपकी यूरिन फॉर्म हो जाती है तो वो यहीं पे आके कलेक्ट होती है और यहीं से रीनल पेल्विस से ही वो यूरेटर के थ्रू पास होती है आपकी किडनी से. ओके, यस, सो नाउ द main part of this topic, main part of this whole formation of urine, how it actually forms. तो ये आपकी किडनी है, this is your kidney, और उसका एक छोटा सा पार्ट किडनी का, आपके एक छोटा सा पार्ट हमने जूम किया है, देखा है उसमें क्या है अंदर, वो कुछ इस तरह से निकल के आया हमारे पास. ओके, ठीक, तो उसमें क्या निकला, हमें नेफ्रॉन्स मिले. हमें नेफ्रॉन्स, these are the VVIPs, these are the these performs the main function, major function, these are the VVIPs. ये जो यूरिफिकेशन का काम हो रहा है, ये जो प्योरिफिकेशन का काम हो रहा है, ये यही नेफ्रॉन्स में ही हो रहा है. ओके, यस, तो नेफ्रॉन्स, हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं. ओके, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, और हर एक नेफ्रॉन वही फंक्शन परफॉर्म करता है. क्या फंक्शन, यूरिफिकेशन का या फिर प्योरिफिकेशन का, यू कैन से प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. तो ये नेफ्रॉन्स हैं. ठीक है, चलो, तो नेफ्रॉन्स कुछ इस तरह से थे. चलो फिर इसको भी हमने जूम किया.
तो कुछ इस तरह से एक नेटवर्क मिला हमें ट्यूब्स का। चलो इसको देखते हैं अच्छे से। यस, सो दीज आर योर नेफ्रॉन्स। ओके, सो चिल्ड्रन, जो भी प्यूरिफिकेशन का काम हो रहा है, या आप कह लो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है आपका, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये आपके नेफ्रॉन्स में हो रहा है। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या है? ये किडनी का पार्ट है। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो कि यही प्यूरिफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यस, नाउ दिस इज योर नेफ्रॉन्स। yes, so now understand in a better way. So yes, ये है आपका एफ्रेंट एट्रियोल। ओके, एफ्रेंट एट्रियोल जो ब्लड है, मैंने क्या बोला, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो रहा है यहाँ पे, तो ब्लड है जो नेफ्रॉन के अंदर जाएगा वो इसी एफ्रेंट के थ्रू जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये देखिए, ये जो एरो है, ये ब्लू येलो एरो, यहाँ से आपका ब्लड जा रहा है अंदर नेफ्रॉन्स के। ओके, ब्लड जा रहा है अंदर नेफ्रॉन्स के। नाउ अंदर जाके यही एफ्रेंट एट्रियोल ये एक नेटवर्क बना रहा है, दिस रेड पोर्शन यू कैन से हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोमेरुलस। ठीक, ये क्या है आपका, ग्लोमेरुलस है। दीज आर योर कैपिलरी नेटवर्क, योर ग्लोमेरुलस। ओके, नाउ ये फर्दर आगे ये इस तरह से ग्लोमेरुलस में जब ये नेटवर्क है, ये फर्दर एक सिंपल सा ट्यूब फॉर्म करेगा जिसको हम बोलेंगे इफ्रेंट एट्रियोल। ठीक, इफ्रेंट एट्रियोल। नाउ हाउ टू रिमेंबर कि एफ्रेंट में क्या होता है, इफ्रेंट में क्या होता है। ठीक है, तो ए इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए कम्स फर्स्ट, ए पहले आता है, बाद में ई आता है, राइट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के। तो इस ए के थ्रू आपका ब्लड जाएगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, कि जो ए पहला आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के, ब्लड उसी के थ्रू पास हो रहा है। ओके, तो एफ्रेंट से कहाँ गया, ग्लोमेरुलस में, दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, कैपिलरी नेटवर्क गुच्छा एक तरह से फॉर्म कर रहा है। फिर ये एक फर्दर एक सिंगल ट्यूब में आगे जाके ये बन जाता है, उसको हम बोलेंगे इफ्रेंट एट्रियोल। ठीक, नाउ ये ग्लोमेरुलस के पास ही, उसके एकदम जस्ट पास में एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक सी शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल। ओके, जिसको हम बोलेंगे हमारा बोमेन्स कैप्सूल। नाउ बोमेन्स कैप्सूल फर्दर आगे जा करके एक इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ना प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है नियरर। ठीक, क्योंकि वो बोमेन्स कैप्सूल के पास है, उसके नियर है, तो इसी को इसलिए इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल। नाउ कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है ट्विस्टेड, एंड एज यू कैन सी ये भी थोड़ा ऐसे ट्विस्टेड है इसका स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। ओके, नाउ ये PCT आगे जा करके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू स्ट्रक्चर नाउ। ठीक है, नाउ ये PCT आगे जाके एक इस तरह से U शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जो PCT है वो आगे जाके एक U शेप बन जाता है, जिसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले और हेनलीज लूप। ओके, बोथ आर सेम, लूप ऑफ हेनले यू कैन से, और यू कैन से हेनलीज लूप। ठीक, तो ये U शेप का स्ट्रक्चर है आपका, डू नॉट फॉरगेट दिस इज U शेप। ओके, नाउ लूप ऑफ हेनली आगे जाके फिर से इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म करता है, ट्विस्टेड ट्यूब्यूल फॉर्म करता है, तो उसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, अगेन कॉन्वोल्यूटेड मीन्स द ट्विस्टेड। ठीक है, सो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये यहाँ पे आकर के एक कलेक्टिंग डक है, वहाँ पे मिल जाता है, और फिर वहाँ से आपका यूरिन फॉर्म हो करके यूरिन फ्लो होता है। ठीक, so this basically is how your
यूरिन फॉर्म, ठीक। और यूरिन फॉर्म कैसे होता है? प्यूरिफिकेशन होता है किसका? ब्लड का, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन्स, सो जस्ट रिमेंबर दिस। एफरेंट एट्रियोल, ठीक है, देन इफरेंट, देन इनके बीच में रहेगा एक ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? एक कैपिलरी नेटवर्क है और वो पास में है जस्ट किसके? बोमेंस कैप्सूल के, ठीक है। और वो बोमेंस कैप्सूल फर्दर एक ट्विस्टेड फॉर्म में हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन्स नियरर, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स ट्विस्टेड। फिर वो एक यू शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और उस यू शेप के स्ट्रक्चर को बोलेंगे लूप ऑफ हेनली या फिर हेनलेज लूप। फिर आगे जाके वो फिर से कुछ एक ट्विस्टेड सा फॉर्म करता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर DCT, ठीक है। और फिर वो एक कलेक्ट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट में, और वो फिर यूरिन आपका फॉर्म कर देगा एक प्रॉपर। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि मैंने क्या बोला था, देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। ये तो सिर्फ एक नेफ्रॉन है, ठीक। इसी तरह से सेम चीज़, सेम स्ट्रक्चर बाकी नेफ्रॉन्स में भी हैं, ठीक। एज आई सेड देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, तो वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स वो सारे यहीं पे आके कलेक्ट होंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक पार्ट है, यहाँ तक सिर्फ एक पार्ट है आपके नेफ्रॉन्स का, सिर्फ एक नेफ्रॉन्स का। यू कैन सी दीज एरोज, ये एक, यहाँ से क्या हो रहा है, बाकी के जो नेफ्रॉन्स हैं, बाकी के नेफ्रॉन्स वो भी आकर के कलेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया सारे नेफ्रॉन्स का कि उनको यहीं पे आके कलेक्ट होना है, अपना काम करने के बाद यहीं पे आकर के उसको कलेक्ट करवाना है। जो यूरिन है बेसिकली, जो फॉर्म हो गया वेस्ट मटेरियल, सारे नेफ्रॉन्स यहीं कलेक्टिंग डक्ट में आके उसको भेज देते हैं और वो फिर यूरिन फ्लो, जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखा था, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, तो वो होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। नाउ अंडरस्टैंड कि ये फंक्शन कैसे करता है। यस, यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन क्या है? तो बेटा ये 3 स्टेप्स हैं इनका, ठीक है। इनका 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला है फिल्ट्रेशन, या फिर आप कह सकते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर आप कह सकते हो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। दिस इज वेरी सिंपल स्टेप, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप है, ट्रस्ट मी। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, इट विल गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू, जस्ट पे अटेंशन हियर। तो फर्स्ट इज योर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या है? ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ओके। सेकेंड स्टेप क्या है? रीअब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेप क्या है? सीक्रीशन, ठीक। तो यस, ये हमारा जो है वो क्या है, नेफ्रॉन्स है, जो हमने अभी देखा था। तो अब देखते हैं कि पहला स्टेप कैसे वर्क करता है। तो स्टेप नंबर 1 इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो नाउ सी ये कैसे काम करता है। दिस इज स्टेप नंबर 1। तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देख लिया हमने। नाउ हाउ इट वर्क्स। यस, तो ब्लड फ्लो किया था, जैसे हमने देखा था कि एफरेंट एट्रियोल के थ्रू आपका ब्लड एंटर किया था नेफ्रॉन्स में, ठीक। और वो फिर एक कैपिलरी नेटवर्क बना लेता है विच इज नोन एज योर ग्लोमेरुलस। हियर दिस रेड पोर्शन, ओके, दिस रेड पोर्शन इज योर ग्लोमेरुलस। तो यू कैन सी दिस एरो कि ब्लड फ्लो किया आपके ग्लोमेरुलस से, ठीक है। और ग्लोमेरुलस के पास ही क्या है आपकी बोमेंस कैप्सूल, दिस बोमेंस कैप्सूल, और दिस ब्राउन पोर्शन, ओके, इज योर बोमेंस कैप्सूल, अ कप लाइक स्ट्रक्चर। चलो, तो अब जब ब्लड आपका एफरेंट एट्रियोल से होते हुए ग्लोमेरुलस तक पहुंचा बेटा, तो ग्लोमेरुलस में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं उसमें ग्लोमेरुलस में, और आपके जो बोमेंस कैप्सूल है जो उससे एकदम पास में है। सी दिस इज योर
glomerulus. Just for example, this is your glomerulus and this hand is your Bowman's capsule. ठीक है, अब जब इसमें पोर्स है तो ये पोर्स के थ्रू आपके कहाँ जाएगा, बोमेंस में तो जाएगा क्योंकि वो एकदम पास है उसके। तो बोमेंस में भी क्या है, स्लिट्स हैं। बोमेंस में भी इस तरह से छेद हैं, क्रैक्स हैं, यू कैन से, ठीक है, स्लिट्स हैं, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से इस तरह से, यू कैन सी दीज एरोस, ग्लोमेरुलस से आपके बोमेंस कैप्सूल में जाएगा। ओके, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और यू कैन से द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, कि ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में गया ब्लड, ठीक, फिल्टर हो गए। एज यू नो व्हेन यू मेक टी, यू नो, तो यू नो टी स्टेनर, तो उससे क्या होता है कि जो लिक्विड पोर्शन है वो आपका कप में आ जाता है, जो सॉलिड पोर्शन है, जो टीज है, जो यू कैन से द वेस्ट मटेरियल, वो आपके उसी स्टेनर में रह जाता है, ठीक, क्योंकि उसमें पोर्स हैं स्टेनर में, उसी के थ्रू नीचे आता है फिल्टर होके, राइट। सो यस, इसी तरह से बोमेंस कैप्सूल में भी आपके पोर्स हैं और ग्लोमेरुलस में अभी आपके पोर्स हैं, ठीक। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ग्लोमेरुलस और बोमेंस, दोनों में पोर्स हैं जिसके थ्रू ब्लड आपका ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में आता है। नाउ चिल्ड्रन, नाउ अब बोमेंस कैप्सूल जब आ गया, उससे आगे क्या था नेफ्रॉन्स में, जब हमने पढ़ा था तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था वहाँ पे। तो अब जो सेकेंड स्टेप है वो यहीं पे होगा। हाँ, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट होकर के क्या आ गया, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये जो फिल्ट्रेट होकर आपके बोमेंस कैप्सूल में आ गया बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या क्या है, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट एंड सम न्यूट्रिएंट्स। और जो नॉन फिल्ट्रेट था, जो फिल्टर नहीं हो पाया, वो क्या था, प्रोटीन, प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स, यू नो। अब वो क्या करेगा, सी, जो चीज़ें फिल्टर हो गई, नाइट्रोजनस वेस्ट, सम एक्सेस सॉल्ट्स, वो तो यहाँ पे आ गई बोमेंस में और प्रॉक्सिमल में, और जो नहीं हो पाई वो इफ्रेंट से चली जाएंगी ब्लड वेसल्स में, जो बाकी के हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो उनको लेकर के बाकी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो वो इफ्रेंट से चली जाएंगी। नाउ स्टेप नंबर 2, दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स एक्चुअली। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन। वेट, यस, तो सेकेंड स्टेप इज योर रीअब्जॉर्प्शन। तो अब बाय द नेम इटसेल्फ रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि जो भी आपके बोमेंस में चला गया है वो जैसे ये सी ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट आपका बढ़ रहा है आगे, ये प्रॉक्सिमल पीसीटी है आपका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसी के थ्रू ये आगे बढ़ा है लूप ऑफ हेनलीज में। नाउ ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे इस तरह से, जो कि ब्लड को लगेगा, जो कि आपके नेफ्रॉन्स को लगेगा कि अरे यार ये तो हमसे गलती हो गई, ठीक है, ये हमसे गलती हो गई, ये वाला जो चीज़ है, ये जो न्यूट्रिएंट है यार, ये हमने बेकार में हम अपने पास ले आए, इसकी हम, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो बॉडी को ज़रूरत है, बॉडी की नीड है, ये तो गलती से फिल्टर होके आ गया, उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, अब ये गलती से आ गया हमारे नेफ्रॉन्स में, अब तो हमें इसको यूरिन बनाना ही पड़ेगा। बट एक ऑप्शन है इसके पास अभी भी गलती अपनी सुधारने का, यू कैन से, वो क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या है आपका, रीअब्जॉर्प्शन, समझ लो गलती सुधारने का स्टेप है। अब यहाँ पे जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज येलो न्यूट्रिएंट्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगा कि जो ब्लड कैपिलरीज, यू ऑल नो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स ही रन कर रही हैं, ठीक, तो वो न्यूट्रिएंट को वापस से भेज देगा, वो इन न्यूट्रिएंट्स को दीज वापस भेज देगा कैपिलरीज में कि नहीं यार मेरे पास ये गलती से आ गई, तुम ले जाओ इन्हें, ठीक है, बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे दो, इनकी वहाँ पे नीड है, ये उनको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, हमारे पास तो तुमने गलती से छोड़ दिया इसको,
तो ले जाओ तुम, हमें नहीं ज़रूरत है इसकी, ये वेस्ट मटेरियल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वापस से कैपिलरीज को दे देगा। ठीक, तो यही है आपका सेकेंड स्टेप इज योर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, तो ये कहाँ पे हो रहा है आपका, पीसीटी में, कीप दिस इन माइंड। ठीक, पीसीटी में हो रहा है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, ठीक, फिर आगे ये हेनलीज लूप है, दीज आर योर यू शेप हेनलीज लूप। ठीक, अब जो सेकेंड स्टेप होगा वो यहीं कहीं होगा, सॉरी थर्ड स्टेप, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट यहाँ पे हो रहा है, सेकेंड स्टेप यहाँ पे हो रहा है, नाउ सी द थर्ड स्टेप। ठीक, so yes, the third step is your tubular secretion. Now by the name itself, secretion, अब क्या होगा, जो रीअब्जॉर्प्शन में हुआ उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अभी तक क्या था कि नेफ्रॉन्स को अपनी गलती समझ में आई कि यार ये तो मैंने गलती से ले लिया, ये न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो वो कैपिलरीज में देगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि कैपिलरीज को अपनी गलती समझ आएगी। अगर कैपिलरीज को लगेगा कि ओ ये तो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, ये चीज़ जो है वो तो वेस्ट है, वो तो हार्मफुल है बॉडी को, तो वो क्या करेगा, वो फिर से थर्ड स्टेप में, जो कि वो फर्स्ट स्टेप में नहीं कर पाए, फर्स्ट स्टेप क्या था, फिल्ट्रेशन, राइट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो वहाँ पे जो चीज़ नहीं हो पाई वो थर्ड स्टेप में होगी। ठीक, तो कैपिलरीज क्या करेगा, ये दीज योर कैपिलरीज दीज, तो वो वापस दे देगा नेफ्रॉन्स को ही कि ये जो चीज़ है मेरे पास ये हार्मफुल है। कैपिलरीज को समझ आएगा कि ये ब्लड में हार्मफुल है, तो ये तुम ले जाओ, किसको, नेफ्रॉन्स को दे देगा ये वापस कि ये चीज़ जो है ये हार्मफुल है, ये नेफ्रॉन्स ले जाओ, इसी को सीक्रेशन बोलेंगे। ठीक, तो यू कैन सी दीज एरोज, ये इस तरफ जा रहा है वापस से इस तरफ। ओके, दीज आर योर थर्ड स्टेप सीक्रेशन। कैपिलरीज देगा आपके नेफ्रॉन्स को जो हार्मफुल और वेस्ट मटेरियल हो, फिर यूरिन आपका बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर योर थ्री स्टेप ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। दीज आर वेरी सिंपल, you just have to remember the structure of the nephrons and steps that are involved and where they happens. Okay, so yes, so just a small recap of what we have already studied. तो step 1 क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे वाटर और सॉल्यूट्स स्मॉलर देन प्रोटीन्स, ये क्या होंगे, पोर्स हैं आपके ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, तो वो आपके बोमेंस कैप्सूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा सेकेंड स्टेप में कि आपके पीसीटी के पास, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जो भी चीज़ ऐसी है जो कि यूज़फुल है आपकी बॉडी के लिए, तो वो वापस से कैपिलरीज में भेज देगा। ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप इज़ योर ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। नाउ कुछ ऐसे आयंस होंगे जो हार्मफुल हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, या फिर जो एक्सेस में है, यू कैन से, ठीक है, एक्सेस में अगर वाटर है तो वो भी वापस भेज देगा, जो चीज़ भी एक्सेस में रहेगी। ठीक है, तो वो कैपिलरीज वापस से नेफ्रॉन्स को भेजेगी, वो स्टेप नंबर 3 है आपका। ठीक है, और क्या क्या, हाइड्रोजन आयन, यू नो, पोटेशियम, क्रेटिनाइन एंड सेवरल ड्रग्स, यू नो, मेडिसिन्स दैट यू हैव दैट यू टेक, वो भी उस हार्मफुल जो उसका पार्ट है वो उसको यू नो स्टेप नंबर 3 में दे देगा आपके नेफ्रॉन्स को। सो दीज आर योर बेसिक यू नो हाउ यूरिन फॉर्म, दीज आर योर बेसिक steps. Okay, these are very simple. Now yes, so these is your kidneys. ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, यूरिन कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी आपके यहाँ पे समवॉट रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में, ठीक है, और वहाँ से आपका यूरेटर के थ्रू, यूरेटर दीज ट्यूब्स, यूरेटर के थ्रू ये कहाँ फ्लो करेगी आपके ब्लैडर में, ठीक है, दिस इज योर ब्लैडर, और ब्लैडर में फर्दर यूरीथ्रा के थ्रू आपका पास करेगी। ओके,
So remember these steps. These are very confusing words because they are very similar. ठीक है, ureter, bladder और the urethra. So just keep this in mind कि renal pelvis से यहाँ से your renal pelvis से ये कहाँ जाएगी, ureter में. ठीक है, ureter is your tube like structures. फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, आपके bladder में, और bladder से कहाँ जाएगी, urethra के through it will expel out. Okay, now again just to summarize the formation of urine, you can make these diagrams because these are very simple diagrams and it will be helpful for you only to keep in mind. Okay, so ये क्या है, blood flow कर रहा है, these are your capillaries, these red ones. ठीक, फिर ये afferent arteriole से, this is your afferent arteriole. I don't know whether you are able to see this or not. This is your afferent arteriole. यहाँ से आपका ब्लड पास करेगा दिस कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम बोलेंगे हमारा ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस, ओके, यस. तो यहाँ से ये आपका ब्लड जो है वो पोर्स है, यहाँ पे इसमें पोर्स हैं जिससे थ्रू ब्लड जो है आपका पास करेगा कहाँ, आपके ये बोमेंस कैप्सूल में. बोमेंस कैप्सूल में, दिस सी शेप और यू कैन से कप शेप. ओके, दोनों में पोर्स हैं जिसके थ्रू इजीली फिल्टर हो सकता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस. तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे होगा. स्टेप नंबर 1 इज योर फिल्ट्रेशन. ओके, यस. नाउ द सेकेंड स्टेप प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा. वहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन. ये देखिए एरो देख रहे हैं आप कि आपके नेफ्रॉन्स से बेसिकली ये वापस दे रहा है आपके ये कैपिलरीज को. दीज रेड आर योर कैपिलरीज. ठीक है, तो ये कैपिलरीज में दे रहा है. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ग्लोमेरुलस से तो हो गया फिल्टर. ठीक है, अब जो चीज़ फिल्टर नहीं हुई है का मतलब कि वो यूजफुल है ब्लड को, तभी उसने नहीं दिया. तो वो इफ्रेंट के जरिए इफ्रेंट एट्रियोल के जरिए वो पास कर जाएगी और यही इफ्रेंट एट्रियोल आगे साथ साथ चलता जाएगा नेफ्रॉन्स के. ठीक है, ताकि जो भी गलती हुई है वो ठीक हो जाए जल्दी जल्दी, तो वो आसपास ही रहेगा नेफ्रॉन्स की. ठीक है, तो यस, तो स्टेप 2 क्या होगा, प्रोक्सिमल से जो चीज़ें लगेंगी कि न्यूट्रिएंट है यार ये तो ये वापस से इफ्रेंट के पास, ये कैपिलरीज के पास चला जाएगा. ठीक, तो ये क्या हो गई, स्टेप नंबर 2 इज योर रीअब्जॉर्प्शन. नाउ स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 क्या है कि लगेगा कि अगर आपकी कैपिलरीज में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हार्मफुल हैं, कैपिलरीज की बात कर रही हूँ मैं, ये एफ्रेंट एट्रियोल की, जो कि हार्मफुल हैं और जिसका तो वेस्ट बनना चाहिए, तो वो वापस से आपके एरोज जो हैं वो डिफरेंट हो जाएगा, तो वापस से आपके नेफ्रॉन्स में आपको सेंड करेगा. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या है आपका, सीक्रीशन है. ठीक है, नाउ यस, तो थर्ड स्टेप एक्सक्रीशन, the main thing for the urine formation, excretion, this process. तो रेनल पेल्विस में सारा कलेक्ट हो जाएगा और वहाँ से यूरेटर के थ्रू पास करेगा ब्लैडर में और यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सेल आउट हो जाएगा. सो दिस इज योर यूरिन एंड दिस इज हाउ अ यूरिन फॉर्म्ड. These are the basic steps that are involved in the urine formation. Okay, yes, so this is a question for you. Okay, you have to comment down below the answer. Just tell me the answers in the comments. I am going to read, and in the next lecture I am going to discuss what all you have written. Okay, so yes, the question is ki why does frequent urination occurs in the winter than in summers. Okay, why does frequent urination occurs in winters than in summers? Okay, so just think and use your common sense. Do not search, do not Google search. Okay, just tell me what you feel
कि the correct answer would be. Okay, so yes, this is your question. So yes, so now I think you all have understood the importance of water. Water is very necessary. It helps in excreting your waste product from your body. ठीक है, water, हमारी यूरिन जो है वो 95% water ही है, 95% water and 5% some waste. Okay, that urea, ammonia and all, लेकिन 95% is water. So it's very important to keep your body hydrated. Okay, hydration is very important. So yes, these are your some important things. What does a water do? It just maintains the fluid balance. It helps in our whole body is made up of water. Water is required in every organ. ठीक है, it's very important to keep heart moist, right? Brain also has some water. Everything is made up of water. Our body is also made up of water, so water is very necessary. So just drink as much as you can. So calorie control, it helps in boosting our brain. Then it just helps in strengthening your joints. Okay, toxic remover, productivity booster, clearer skin, glowing. For a glowing and healthy skin, you need to drink a lot of water. Okay, it acts as a muscle fuel. So yes, fluid balance, everything. So water is a very necessary. Just drink 10 to 12 glass of water per day. Okay, and just keep yourself hydrated, keep yourself moist. This is a very simple thing that you can actually do to your body. Okay, this is very beneficial and very simple. You don't have to make anything, right? There's nothing like you need to hard work on. You just have to drink water. And yes, one more important thing, you all know how to drink water, but just one small note, always drink water while sitting. Okay, do not drink water while standing. Okay, just sit down and then drink water. Yes, so this is very important point. See children, this bio, I know that you some might found it very boring. This topic and this subject is very boring to you. I understand the reason also, but why we all study bio till class 10th is reason is this only, कि you should know about your body, about human body. It's very important to know about what is harmful, what is useful, how it performs, how it works. We all know heart, kidney, brains, but it's very important to how it works actually. So body is everything, human body is everything, right? We all need a healthy and happy life. So for that it's very important to understand the our body functions and all. So it's very important. That's also the reason why you now, since you understood key importance of water, what it does in your body, so it's very important. This is why we study bio basically. So yes, do not forget to hydrate, stay hydrated, drink as much as water you can, and yes, take care of you and your family. Okay, so in the next lecture we will talk about the excretion in the plants. Okay, so yes, this topic is over. I think this is very much clear to you. I have explained you in a very simple language. So but still, if you have any question, anything, you can just comment down below. Okay, I'll read, and in the next lecture we are going to discuss about that first. And one more thing, I have given you a homework, right? The question which I have given you, so do answer me. Okay, and yes, till then, goodbye, take care, stay healthy, stay fit and study well. Thank you.